Father Socius, Father Henry Lakra, Father Tej Kumar Minj, our House Superior and candidate for final vows, Father Emil Ekka, our Province Treasurer, Father Fabianus Minj, Principal, Loyola School, Bilaspur, Father Alexander Ekka, Administrator, Jisa, Raipur, and dear fathers and dear brothers. While in the one hand, we are learning to live with the pandemic, even the second wave, with a stronger forces of affecting all our lives, different aspects of our life. We are also gracefully, providentially, and historically in a grace moment, which is much more powerful than the pandemic, I believe. While the church is also facing a lot of challenges, both internal and external, in terms of availing the sacraments to the people, and especially to the poor and the marginalized. The society is also in a very special way in a historical grace moment. That is, global society is in the period of universal apostolic preferences. Its implementation, its fruits that we are gathering. And so aligned with that, our province is also in the grace period of province apostolic plans, which we are in the process of implementing. And in this historical time, we have also the much more powerful grace moment of Ignatian year to relive our charism, to relive our history, to relive our personal as well as communitarian and institutional commitment along with the conversion, so that we become more effective and efficient in following our Lord, in responding to Him. It's our pleasure to have you here at Campion Jesuit Community Raipur to witness the celebration of the feast of our founder, Saint Ignatius of Loyola, where we have also integrated the final vows of our Superior and Principal, Father Tej Kumar Minj. It's my honor to welcome you here to participate in this historical grace moment and be one as a province, one as body of Christ, as global society, and one with the local church here in Raipur. All of the faithful are praying for us today, and our Archbishop has also sent a special message of his blessing for this occasion. I had not informed him about the final vows of Father Tej, but he sends his blessings to us. Dear Father Stanley and community, prayed for all our Jesuits, particularly those of you in the Archdiocese during the Holy Mass. May the method and example of prayers, mortification, and study continue to inspire all of us to make Christ the destination and the path we end and means, the way, the truth, and the life. Wish you all a very happy and holy feast day. With blessing, Victor Henry Thakur, Archbishop of Raipur. So with his blessing and with the blessing of Saint Ignatius of Loyola, our founder, let's then enter into this celebration. And first we'll listen to the testimony of Reverend Father Tej Kumar Minj, his vocation, his commitment, and his journey up to this day. Then we'll have entrance. Once again, Father Provincial, Father Socius, all of our fathers, and very special way, Father Tej Kumar, hearty welcome to be one in this grace-filled moment. Hello, this is Father Tej Kumar Minj SJ of MP Province. I was born and brought up in a small village called Mahkepi. Those days it belonged to Sarguja district, and at present it is in Balrampur district.
I am the youngest in the family of 4 brothers and 1 sister. Being youngest, I was little pampered but most loved one. In my village, there were 17 to 18 Catholic families, mixed village of different tribes and faith. I did my schooling from St. Joseph's Middle School, Balrampur, and then for my higher studies, I came to St. Xavier's School, Ambikapur, and I completed my plus 2 from St. Xavier's School, Ambikapur. It was not by choice that I wanted to join the Society of Jesus, but it was just by chance. When Father Regional Superior then came for an interview for the candidates for the Society of Jesus, I was one of them. And the question he asked was, give me some names of the Jesuit saints. And I knew nothing, not a single one I could answer. And I thought that was the end of my vocation to the Society of Jesus. But it was God's grace that I was selected. And after passing my plus 2, I joined pre-novitiate at Boyardadar, Raigad. In my family, my father was a catechist, village catechist. My mother, housewife. So normally those days, priests and nuns, those who came to say mass or to teach catechism, they used to stay in my family. And that was kind of temptation for me. And one thing was that these priests, whenever they came to say mass, the only motorcycle, those days we used to call it Phatphatia, that was the only attraction of the village, that he came with the motorcycle. And I felt that I too like to drive that. So kind of seed was sown in me for a priesthood, knowing nothing about the priesthood. And slowly I was tempted by looking at them, the way they lived their life. And meantime, some brothers came to my village to teach catechism, and they used to have a bicycle with light. Those days a kind of light was also there. So when they were coming back to family in my house, they used to come in line, and that was beautiful to see how they were riding lighted cycle. So these were some few source of inspiration for me, or kind of attraction for the priesthood. Not exactly priesthood, but those days we used to call father banna hai, sister banna hai. So that kind of thing was there little bit. Not exactly I decided or I thought of, but yes, those activities, those people, brothers, sisters and parish priest, they surely they were attraction for me to go in that line. Well, after joining the Society of Jesus, there are different stages of the formation we have, starting from novitiate, juniorate, college studies, regency, philosophy, theology. All those stages had been very interesting for me and very good learning aspect of my life. I enjoyed going to different places, like for juniorate Hazaribagh, philosophy Chennai, theology Tarunodaya, RTC Ranchi, then Delhi, Regency, Bhopal, and then other formation of stages. Meeting with so many people, that means Jesuits in the formation houses, from south, north, east, west, different culture, different background, different way of thinking. So that gave me a lot of chances to learn so many things. Culture, language, and especially the knowledge, acquiring the knowledge from different Jesuits from different provinces, different cultures. So that was very interesting, playing games with them, making fun,
and doing so many things, going for picnic, going for group studies, debate, discussion. All these things were really that shaped my life. I simply came from a small village where there was nothing. But when I joined the society and went through these parts of my formation, I really enjoyed and I learned a lot. So I'm really thankful and grateful to MP province giving me these opportunities, sending me for different places like for pre-regency course to Northeast. What a beautiful place to see. I think because I joined the Society of Jesus, I could see those valleys of Northeast, Darjeeling, the beautiful place. Similarly, for my Pope program, I was sent to Kathmandu, another beautiful place, hilly area. So this was because of the Society of Jesus. I could visit and I could learn, I could see, I could learn some things from the people over there, their little culture. I could see and imagine. So these were beautiful places and beautiful time, very fruitful to learn many things. So I'm really grateful and thankful to the Society of Jesus, especially the MP province. Was thrown in the mission after my ordination. First place as a headmaster to a small school called Rajpur, is close to Jingo parish. That was just the starting school, and that was my first place that I was appointed as a headmaster with another scholastic. Not much challenges, but there were ample opportunity to learn as one goes to the mission places. So really ample opportunities to mingle with people, students, staff, and the parents, and you really learn so many things, which I think some of the things we did not learn or these were not taught in different formation houses, but such things, those knowledges were taught knowingly or unknowingly by the people in the mission station. Similarly, I enjoyed 2 years of my life in Baikunthpur and 4 years of my life in Bhaiswar as a principal and superior. Beautiful place and beautiful people. A special mission we have that is called Gondwana mission. So I was there. I enjoyed with people among the non-Catholics. So that was fantastic. There were challenges, yes, and there are challenges in life. But whenever I embarked with any challenges anywhere in my place or in my life, I felt the Society of Jesus was always with me, along my side to help me and to support me. So going through the tertianship, really going back my own vocation, my own personal life in the Society of Jesus, especially going through the 30 days retreat, that really gave me a boost to go ahead in my vocation. And that was really a kind of energy for my Jesuit life. To go through the Ignatian spirituality thoroughly, understanding the spiritual exercises, and really feeling that what Ignatian had and what he put it in the form of spiritual exercises. And really I felt that there was a change in my life regarding my spirituality. The depth of spirituality I felt there, I received there. Life in the Society of Jesus, khana, pina and sona, plenty. So it is beautiful. Call and the Society of Jesus is really beautiful. One can just come in the society, enjoy the life, working, living in a community, not only in a small community, but community as whole, MP province. Thank you. Que nació
इग्नासियो, तू यीशु के पथ का राही, मुझको राह दिखा, तू ईश्वर का सच्चा प्रेमी, मुझको प्रेम सिखा, हे संत इग्नासियो। सारे ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य सबको ईश्वर ने हमारे फादर जनरल के मध्यस्थता द्वारा फादर तेज कुमार को अंतिम मन्नत के लिए चुना। इनके साथ और भी 4 फादर्स हैं, तो आज हम ईश्वर को तेज कुमार के साथ साथ अन्य 4 फादरों के लिए भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने फादर जनरल के माध्यम से अंतिम मन्नत के लिए चुना है। और इस मिस्सा बलिदान में हम विशेष रूप से तेज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके बुलाहट के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें और बाकी जीवन में वे ईश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जी सकें और जो भी उत्तरदायित्व उन्हें दी गई हैं और दिए जाएंगे उनको ईश्वर की इच्छा के अनुसार वे पूरा कर सकें। हम अपनी कमजोरियों को, पाप गुनाहों को ईश्वर के समक्ष रखें और ईश्वर से क्षमा और कृपा की याचना करें। तूने अपनी महिमा के विस्तार और कलीसिया के नवीनीकरण के लिए लोयोला के संत इग्नासियस को चुन लिया। इन्हीं के समान हम भी जीवन संग्राम में विजयी होकर स्वर्गिक मुकुट प्राप्त करें। यह वर दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्याएं 15 से 20 तक। मूसा ने लोगों से कहा, देखो आज मैं जीवन और सौभाग्य,
तथा मरण और दुर्भाग्य दोनों ही तुम्हारे सामने रखता हूँ, जिसकी मैं तुम्हें आज आज्ञा देता हूँ। उसका सार यह है, तुम प्रभु अपने ईश्वर से प्रेम करो, उसके मार्गों पर चलते रहो, उसकी आज्ञाओं, विधानों और आदेशों का पालन करो। ऐसा करने से तुम जीते रहोगे, असंख्य होगे और प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें उस देश में आशीर्वाद देगा जिसे अधिकृत करने को तुम अभी प्रवेश करने जा रहे हो। परंतु यदि तुम्हारा हृदय विरुद्ध गया और तुम अवहेलना करके दूसरे देवी देवताओं की सेवा पूजा की ओर आकर्षित हुए, तो मैं तुमसे आज ही यह कह देता हूँ कि तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। जब तुम दीर्घकाल तक उस देश में न रह पाओगे जिसे हस्तगत करने के लिए अभी तुम यरदन पार करने जा रहे हो। आज के दिन मैं तुम्हारे विरुद्ध स्वर्ग और पृथ्वी को साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीर्वाद और अभिशाप दोनों ही तुम्हारे सामने रख दिए हैं। तुम जीवन चुन लो जिससे तुम और तुम्हारे वंशज जीते रहें। प्रभु अपने ईश्वर के प्रति प्रेम रखो, उसकी बात मानो और उसका ठीक ठीक अनुसरण करो। इसी पर तो तुम्हारा जीवन और तुम्हारी आयु की वृद्धि निर्भर है। इसी से तुम उस देश में रह सकोगे जिसे प्रभु ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तुम्हारे पूर्वजों को देने का उन्हें शपथ पूर्वक वचन दिया था। यह प्रभु की वाणी है। Second reading. A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians, chapter 10, verses from 31 to 11. Brothers and sisters, whether you eat or drink or whatever you do everything for the glory of God. Give no offense to Jews or to Greeks or to the church of God, just as I try to please everyone in everything I do, not seeking my own advantage, but that of many, so that they may be saved. Be imitators of me, as I am of Christ. The word of the Lord. Thanks be to God.
मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो चले। ईसा किसी दिन एकांत में प्रार्थना कर रहे थे और उनके शिष्य उनके पास थे। ईसा ने उनसे पूछा, मैं कौन हूँ? इसके विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्ता। कुछ लोग कहते हैं एलियस और कुछ लोग कहते हैं प्राचीन नबियों में से कोई पुनर्जीवित हो गया है। ईसा ने उनसे कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? पेतरुस ने उत्तर दिया, ईश्वर के मसीह। उन्होंने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि वे यह बात किसी को भी नहीं बताएं। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। इसके बाद ईसा ने सबों से कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार तो प्राप्त कर ले, लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे या अपना सर्वनाश करे। जो मुझे तथा मेरी शिक्षा को स्वीकार करने में लज्जा अनुभव करेगा, मानव पुत्र भी उसे स्वीकार करने में लज्जा अनुभव करेगा, जब वह अपने पिता तथा पवित्र स्वर्ग दूतों की महिमा के साथ आएगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हम सब यीशु समाजी संत इग्नासियस के जीवन से भली भांति परिचित हैं, फिर भी चूंकि आज बड़ा त्यौहार है, संत इग्नासियस का त्यौहार, मैं कुछ घटनाओं का जिक्र करना चाहूँगा। हम सब जानते हैं कि संत इग्नासियस का जन्म 1491 में आस्पेजिया में हुआ था, जो कि स्पेन के उत्तरी भाग में है, बास्क प्रदेश में। वे परिवार में 13 बच्चों में से आखिरी बच्चे थे, इसलिए आप अनुमान लगा सकते हैं कितना उसके प्रति बाकी भाई बहनों का लगाव था और उनको कितना प्यार मिला था। 16 वर्ष की उम्र में वे कास्टिला राज्य के युवान वेलाक्विज के दरबार में एक पेज के रूप में काम करने के लिए गए, और तब तक उसके मन में यह बात घुस गई थी कि वह एक दिन बहुत बड़ा योद्धा बनेगा, बहुत बड़ा सैनिक बनेगा। इसलिए लगभग सभी समय वो एक सैनिक में के पहरावा में रहता था और हमेशा तलवार उसके हाथ में हुआ करता। तो उसकी ये लालसा थी, उसका एक स्वप्न था कि भविष्य में एक बड़ा योद्धा, एक बहुत बड़ा सैनिक बनेगा और पूरे विश्व में नाम कमाएगा। अंततः जब वह 30 वर्ष का था उस समय उसको वह मौका मिल गया। पंपलोना में लड़ाई हुई स्पेन और फ्रांस के बीच में। स्पेन सैनिकों के सेनापति को भनक मिल गई थी, सूचना मिल गई थी कि उनकी संख्या, उनके सैनिकों की संख्या फ्रांस के सैनिकों की तुलना में बहुत कम थी। इसलिए उसको निश्चित पता था कि उनकी हार होगी।
इसलिए वो चाहता था कि आत्मसमर्पण करे। लेकिन जैसे ही इग्नासियस को पता चला, उसने उसका विरोध किया। किसी भी हालत में वो आत्मसमर्पण के लिए तैयार नहीं था। वो अपने देश के लिए लड़ाई करके मर मिटने के लिए तैयार था। वीरता दिखाने के लिए उसको एक मौका मिल रहा था, और विशेषकर वो अपने देश को हारते हुए देखना नहीं चाहता था। अपने देश को किसी और देश के अधीन रहते देखना नहीं चाहता था। इसलिए उसने सेनापति से बात की, और अंत में उन्होंने उसे मजबूर किया लड़ाई लड़ने के लिए। और जब तक संत इग्नासियस वीरतापूर्वक लड़ते रहे, उनके सैनिकों का हौसला बढ़ता रहा और वे लड़ाई में जीतने के कगार में आ रहे थे। लेकिन बीच में एक गोला उसके पैर में आ करके लग जाता है, और उसके कारण वो बुरी तरह घायल हो जाता है, जख्मी हो जाता है। और जैसे ही वो जख्मी होता है, घायल होता है, उनके सैनिकों में हौसला कम होने लगता है, और अंततः वे हार जाते हैं। और जैसे हमने गाना में गाया, उस लड़ाई के बाद उसके सहपाठी उसको उनके घर पहुंचा देते हैं, और वहाँ उनका इलाज शुरू होता है। और उनकी जीवनी से हम जानते हैं कि पहली बार में उसका पैर ठीक से सेट नहीं हुआ, इसलिए उसको तोड़ना पड़ा। तोड़ने के बाद भी पूरी तरह से पैर स्वस्थ नहीं हुआ। एक पैर छोटा हो गया था, इसलिए फिर उसको आरी से काटना पड़ा। समझ सकते हैं कितना तकलीफ हुई उन्हें, लेकिन फिर भी उस तकनीक को वो सहने के लिए तैयार थे। जब वे घर में थे, उनकी इलाज चल रही थी, स्वास्थ्य लाभ उनको धीरे धीरे मिल रहा था। वे चाहते थे कि वीर सैनिकों के बारे में कुछ पढ़े, लेकिन दुर्भाग्यवश उनके घर में वैसे कोई पुस्तक उस समय उपलब्ध नहीं थी। फिर उन्होंने उपन्यास मंगवाया, लेकिन उपन्यास भी उपलब्ध नहीं थे। सिर्फ 2 पुस्तकें उपलब्ध थी, यीशु की जीवनी और संतों की जीवनी, जिसको कोई बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उस तरह की पुस्तकों में उसकी कोई रुचि नहीं थी। लेकिन समय बिताने के लिए बोर हो रहा था, उससे ऊपर उठने के लिए उसने धीरे धीरे उन पुस्तकों को पढ़ना शुरू किया। तब उसने देखा कि इन पुस्तकों को में भी वीरता है, अलग प्रकार की वीरता, जिसे असीसे के सन फ्रांसिस और सन डोमिनिक ने करके दिखाया था। और उसने कहा, यदि सन फ्रांसिस और सन डोमिनिक ने ये करके दिखाया तो क्या मैं नहीं कर सकता हूँ। बस वही था परिवर्तन का बीज, परिवर्तन की शुरुआत उसके जीवन में। और वह मार्च महीने के 1522 के मार्च महीने में वह घर छोड़ देते हैं। वे चले जाते हैं मोंसरात के पहाड़ में बेनेडिक्टन चर्च ऑफ आवर लेडी है। वहाँ उन्होंने 3 दिन तक प्रार्थना की और पाप स्वीकार किया, और अंत में तलवार और छुरी को माता मरियम की मूर्ति के सामने सुपुर्द कर दिया उसने। और फिर वे चले जाते हैं कार्डोनेर नदी के किनारे मनरेजा की गुफा में, जहाँ वे 10 माह तक रहते हैं और मनन चिंतन करते हैं। और उसी बीच उसके जीवन में भारी परिवर्तन आता है। ईश्वर कई बार दर्शन भी देते हैं, उसके आध्यात्मिक जीवन में नए नए अनुभव मिलते हैं, और उनको उसने एक पुस्तक के रूप में बाद में लोगों के सामने लाया, आध्यात्मिक साधना के रूप में, जो कि विश्व में प्रसिद्ध हो गया, और उसने कई लोगों का जीवन बदल दिया। 10 माह के बाद में उसकी इच्छा थी कि वे पवित्र देश जाए और आत्माओं को बचाए, और
पवित्र देश वे चले भी गए, लेकिन वहाँ स्थिति बहुत ख़राब थी, इसलिए वहाँ के संत फ्रांसिस्कन फादरों ने उसे वहाँ लंबे समय तक रहने नहीं दिया और वे उन्हें वापस भेज दिए। वापस आने के बाद भी वे चाहते थे कि बच्चों को क्लास दे, धर्म की शिक्षा दे, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ क्योंकि उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, उन्होंने कोई विशेष पढ़ाई नहीं की थी इस कार्य के लिए, और इसने 33 साल की उम्र में उसने पढ़ाई प्रारंभ की। उसके बाद पढ़ाई के दौरान ही उन्हें कुछ सहपाठी मिले, जैसे सेंट जेवियर्स और पीटर फावेर, और उनके साथ और भी कुछ सहपाठी। उनके साथ मिलने के बाद उन्होंने योजना बनाई पुनः पवित्र देश जाने के लिए, लेकिन दुर्भाग्यवश 1 साल तक इंतजार करने के बाद भी कोई जहाज़ पवित्र देश के लिए रवाना नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ ईसाइयों और मुसलमानों के बीच में भारी तनाव था। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि संत पापा के पास जा कर के सुपुर्द कर दे, और जो भी संत पापा कहेंगे वे उन्हें करेंगे, और वे रोम चले गए। इसी बीच में उन्होंने अपना काम जारी रखा और विचार विमर्श के दौरान उन्होंने निर्णय लिया कि वे एक समाज की स्थापना करेंगे भविष्य को ध्यान में रखते हुए, और अंततः 27 सितंबर 1540 में यीशु समाज की स्थापना हुई। और इसी बीच में यीशु समाजों की संख्या बढ़ती गई, उनकी मांग भी बढ़ती गई, और जैसे हम जानते हैं कि संत इग्नासियस की मृत्यु तक, उनकी मृत्यु 31 जुलाई 1556 में हुई, तब तक यीशु समाजियों की संख्या 1000 से ज़्यादा हो गई थी। वो स्पष्ट दिखाता है कि कुछ ही साल के अंदर में यीशु समाजियों की संख्या बहुत तेज़ गति से बढ़ी थी। उनकी मृत्यु के बाद 1609 में उन्हें धन्य घोषित किया गया, और 12 मार्च 1609 में वे संत घोषित किए गए। आज पूरे विश्व में यीशु समाजियों की संख्या 15,306 है, जिसमें से 11,049 पुरोहित हैं और बाकी ब्रदरगण हैं और स्कॉलास्टिक्स हैं। ये तो रहे संक्षिप्त में यीशु समाज और की इतिहास और ये संत इग्नासियस की संक्षिप्त जीवनी। यह वर्ष विशेषकर 2021 और 22 बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है, क्योंकि 500 वर्ष पूर्व संत इग्नासियस पंपलोना की लड़ाई में घायल हुए थे, और उसी घटना ने उसके जीवन में एक नया मोड़ लाया था। उनके जीवन में एक भारी परिवर्तन हुआ था। वे हर चीज़ को नई दृष्टि से देखने लगे थे, ईश्वर की दृष्टि से देखने लगे। इसीलिए इस वर्ष इग्नेशन ईयर में विषय रखा गया है टू सी एवरीथिंग फ्रॉम द न्यू पर्सपेक्टिव, from the new perception। आज हम यहाँ फादर तेज के अंतिम मन्नत के लिए एकत्रित हुए हैं। जैसे कि संत इग्नासियस का विजन था कि यीशु समाजी एक लंबे ट्रेनिंग के साथ अपने को तैयार करेंगे, नव शिष्यालय से लेकर अंतिम मन्नत तक। तो जैसे हमने वीडियो में देखा प्रारंभ में, फादर तेज ने बताया किस तरह वे नव शिष्यालय में प्रवेश किए, किस तरह आगे बढ़े ट्रेनिंग के हर कदम में, और अंत में इस मुकाम तक वे पहुंच पाए हैं। नव शिष्यालय में जो मन्नत लिया जाता है वो चिरस्थायी है।
आज फादर तेज अंतिम मन्नत लेंगे। तो एक सवाल उठता है, अगर वो 9 शिष्यालय में मन्नत ले चुके हैं और वो चिरस्थायी है, तो अंतिम मन्नत की क्या ज़रूरत है, क्यों इसकी आवश्यकता है? ये एक सवाल बार बार उठता है। जो 9 शिष्यालय में जो हम मन्नत लेते हैं वो प्रथम मन्नत से जाना जाता है, और हम सब जानते हैं कि 9 शिष्यालय प्रथम स्तर है ट्रेनिंग का, और उस समय हम पूरी तरह परिपक्व नहीं रहते हैं। हमारी जो समझदारी है वो उतनी गहरी नहीं होती है, इसलिए जो भी कि हम मन्नत लेते हैं जो चिरस्थायी है, फिर भी यीशु समाज हमें एक और मौका देता है कि पूरी तरह समझने के बाद और ट्रेनिंग प्रशिक्षण के सब स्तर को पूरा करने के बाद हम और एक मन्नत लें, जिसको हम अंतिम मन्नत के नाम से जानते हैं। और इसके माध्यम से जो भी कि ऑलरेडी दर्शनशिप में हम पूरी तरह यीशु समाज के सदस्य बनते हैं। इस मन्नत के माध्यम से हमारा पूर्ण समावेश होता है, पूर्ण समावेश होता है। हम पूरी तरह पूरी स्वतंत्रता के साथ हम यीशु समाज में प्रवेश करते हैं, यीशु समाज के भाग बन जाते हैं। इसमें हम 4 प्रकार का व्रत लेते हैं, निर्धनता, आज्ञाकारिता और ब्रह्मचर्य, जो कि हम पहले भी लिए रहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम संत पापा के प्रति आज्ञाकारिता का व्रत लेते हैं। कल ही एक पल्ली पुरोहित ने सवाल किया था, अगर आप चौथा व्रत लेते हैं संत पापा के प्रति आज्ञाकारिता का, व्हाट अबाउट बिशप? उसने सवाल किया था, व्हाट अबाउट बिशप? बिशप के प्रति आज्ञाकारिता है कि नहीं? तो मैंने कहा कि ये बिशप लोग किसके प्रतिनिधि हैं, किसके प्रतिनिधि, वे किसके प्रति उत्तरदायी हैं? तो उसने कहा कि संत पापा के प्रति। अगर हम लोग संत पापा के प्रति व्रत ले रहे हैं तो समझिए कि हम बिशप के प्रति भी व्रत ले रहे हैं। सोलम वाउस के बाद जब फुल्ली प्रोफेस्ड हो जाते हैं हम, उसके साथ हम और भी 5 सिंपल साधारण वाउस लेते हैं, सिंपल वाउस। और यह अगर अलग से या तो साक्रिस्टी में लिया जाता है या तो कोई छोटे चैपल में लिया जाता है। ये जो 5 वाउस हैं, 5 व्रत हैं, इग्नासियस की दूरदर्शिता को दिखाते हैं। तो ये 5 वाउस क्या है? कई बार इसके बारे में हम लोग अनभिज्ञ हैं। तो ये 5 वाउस हैं। पहला है यीशु समाज में संविधान में कोई परिवर्तन नहीं लाने के लिए, ये पहला व्रत है। दूसरा है कलीसिया में बड़े पद की इच्छा नहीं रखने के लिए, जैसे बिशप का पद या वैसे ही कोई और बड़ा पद, ये दूसरा व्रत है। तीसरा है यीशु समाज में बड़े पद पाने की अभिलाषा नहीं रखने के लिए, जैसे हम कलीसिया में बड़े पद की अभिलाषा नहीं रखने के लिए व्रत लेते हैं, वैसे ही यीशु समाज में बड़े पद नहीं पाने के लिए व्रत लेते हैं या अभिलाषा नहीं रखने के लिए व्रत लेते हैं। चौथा है यदि कोई ऐसे पद के लिए अभिलाषा रखते हैं और उसके लिए राजनीति करते हैं तो उसके बारे में अधिकारियों को सूचना देने के लिए हम लोग व्रत रखते हैं। तो ये हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम अधिकारियों के लिए इसके बारे में सूचना दें। 5वां है यदि हम बिशप नियुक्त हो जाते हैं तो हम फादर जनरल के अंतिम निर्णय को माने। यदि नियुक्ति भी हो जाती है और फादर जनरल बोलते हैं कि नहीं, आपको बिशप नहीं बनना चाहिए, इसको स्वीकार नहीं करना चाहिए, तो हमें उसे स्वीकार नहीं करना है। ये है 5वां व्रत। तो फादर जनरल का निर्णय अंतिम होता है। संत पापा के प्रति चौथा व्रत, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है आज के व्रत में से, फाइनल आखिरी मन्नत में से, यह सिर्फ मिशन कार्य के लिए होता है, मिशन कार्य के लिए, अन्य चीज़ के लिए नहीं, लेकिन मिशन कार्य के लिए। तो मिशन कार्य ये मुख्य बिंदु है इस चौथे व्रत में। समझदारी यही है
कि संत पापा को कलीसिया में कहाँ, क्या परिस्थिति में और किस तरह की ज़रूरत है और किस व्यक्ति की कहाँ ज़रूरत है, उसका अच्छा ज्ञान होता है संत पापा को। इसीलिए संत पापा ही सही निर्णय ले सकते हैं इसके बारे में। इसीलिए यह चौथा व्रत संत पापा के प्रति लिया जाता है, जिससे कि संत पापा की बात हम माने, क्योंकि उनको पूरी जानकारी होती है। इसलिए फोर्थ वाव विश्व में कहीं भी भेजे जाने के लिए वर्ल्ड वाइड मोबिलिटी के लिए लिया जाता है। तो तेज कुमार मिंज ने अपनी लंबी यात्रा पूरी कर ली है यीशु समाज में। प्रशिक्षण के सभी स्तर को उसने पूरा किया है और आज इस मुकाम तक पहुंच गए और उन्हें फादर जनरल ने अंतिम मन्नत के लिए चुन लिया है। आज हमने सुसमाचार पाठ में सुना, यीशु ख्रीस्त ने कहा था, Who do the people say that I am? लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, मैं कौन हूँ? और अंत में सीधे सवाल करते हैं पेतरुस को, Who do you say that I am? तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? तुम क्या सोचते हो कि मैं कौन हूँ? वही सवाल यीशु ख्रीस्त ने तेज कुमार को किया था सोसाइटी ज्वाइन करने के पहले। हमने वीडियो में देखा कैसे उनकी बुलाहट की शुरुआत हुई। उनके पिताजी की एक विलेज कैटेकिस्ट थे और विलेज कैटेकिस्ट होने के कारण जो भी फादर वहाँ मिस्सा के लिए जाते थे उन्हीं के घर में रुकते थे और हमेशा मोटरसाइकिल में जाते। तो मोटरसाइकिल उनके लिए एक आकर्षण का कारण बन गया। उस समय मोटरसाइकिल किसी के पास होना बहुत बड़ी बात होती थी। हम लोग गांव में कोई भी मोटरसाइकिल में आते थे तो हम लोग उनके पीछे पीछे दौड़ते थे। क्या करने के लिए? देखने के लिए, केवल देखने के लिए। तो बहुत ही कम मोटरसाइकिल हुआ करते थे। तो समझिए वो एक आकर्षण का पॉइंट। साथ साथ में ब्रदर लोग साइकिल में जाते थे और उस समय मैं भी याद करता, हम लोग जो साइकिल में घूमते तो उसमें लाइट लगा रहता था और जहाँ कहीं भी जाएंगे टॉर्च अलग से नहीं पकड़ते थे, लेकिन साइकिल में लाइट फिक्स हुआ रहता था। और रात को एक साथ जाएंगे तो लाइन बहुत ही अच्छा दिखा देता था और लगता भी था। तो ये आश्चर्य की बात नहीं कि जब अगर तेज कुमार ने देखा वे उसके प्रति आकर्षित हुए थे। तो हो सकता है यीशु ख्रीस्त के सवाल का जवाब इसी में निहित था, Who do you say that I am? तो फादर तेज ने यीशु ख्रीस्त को इन्हीं के माध्यम से पहचाना था। इन्हीं फादरों के माध्यम से जो मिस्सा करने आते थे, इन्हीं ब्रदरों के माध्यम से जो धर्म क्लास लेने के लिए आते थे, उन्होंने पहचाना था कि यीशु ख्रीस्त कौन है। अप्रत्यक्ष रूप से यीशु के सवाल कि तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ, उन्होंने ढूंढ निकाला। यीशु के नाम इन फादरों और ब्रदरों के माध्यम से उनको पता चला कि यीशु के नाम पर एक समाज है, यीशु समाज। और धीरे धीरे उनका आकर्षण उस समाज के प्रति बढ़ता गया और अंततः उन्होंने उस समाज में प्रवेश ले लिया। बुलाहट की यात्रा में बहुत उतार चढ़ाव होते हैं। फादर तेज ने अपने वीडियो में कुछ हिंट्स दिए थे, कुछ समस्याओं के बारे में। और हम सबों का अपना अपना अनुभव है कि हमारे जीवन में कई उतार चढ़ाव हुए हैं। वो बुलाहट का एक महत्वपूर्ण भाग है। जैसे यीशु ने कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्म त्याग करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। यीशु ख्रीस्त का अनुकरण करना मतलब कि तकलीफ उठाना, समस्याओं से जूझना,
स्वयं को त्याग करना, परिवार और भाई बहनों और धन संपत्ति का तो त्याग करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ स्वयं को भी त्याग करना है। कहने का मतलब हमारी जो अपनी इच्छा है, अपनी अभिलाषाएं हैं, अपना जो क्या कहें स्वप्न है, उसको त्यागना पड़ता है यीशु ख्रीस्त के लिए, यीशु ख्रीस्त के राज्य के प्रसार के लिए। तो यीशु ख्रीस्त स्पष्ट करते हैं कि जो भी उनका अनुसरण करना चाहता है वह आत्म त्याग करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर उसके पीछे हो ले। क्रूस उठाना मतलब कि जितनी भी दुख तकलीफ हैं, समस्याएं हैं, उनको जूझते हुए यीशु ख्रीस्त के पीछे हो लेना। दुख तकलीफ आई है उनके जीवन में, उसका सामना करते हुए आज वे यीशु ख्रीस्त के बहुत नज़दीक के शिष्य बन गए हैं और उसने सब कुछ का त्याग दे दिया है, अपने भाई बहनों, परिवार का और धन संपत्ति। कल हमने शाम को उसी का कार्यक्रम देखा, उसी लिटर्जी में भाग लिया, रिनंसिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। उसने उसके माध्यम से सब कुछ को त्याग दे दिया है। प्रथम पाठ में 2 मार्ग हमारे सामने रखे गए हैं, जीवन और मरण, आशीर्वाद और अभिशाप। और ईश्वर कहते हैं इन दोनों में हम जीवन और आशीर्वाद का मार्ग चुनें, मरण और अभिशाप का मार्ग छोड़ दें। तो तेज ने यीशु समाज ज्वाइन करके यीशु ख्रीस्त का शिष्य बन करके जीवन और आशीर्वाद का मार्ग चुना है और उसी मार्ग पर बढ़ते, सभी समस्याओं को जूझते हुए आज वे इस मुकाम पर पहुँचे हैं। सभी प्रशिक्षण के स्तर को पूरा करते हुए आज वे अंतिम मन्नत तक पहुँच गए हैं। इसलिए आज हम ईश्वर को विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं, उन्हें बुलाहट देने के लिए यीशु समाज में, और सभी प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए और सभी समस्याओं को जूझते हुए इस मुकाम तक पहुंचने के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। और साथ साथ में प्रार्थना करते हैं जैसे वे आज अंतिम मन्नत लेंगे, उसके साथ साथ ईश्वर उन्हें भरपूर आशीष और कृपा प्रदान करे, जिससे वे आगे के जीवन में भी अपने जीवन को ईश्वर की इच्छा के अनुसार जी सकें और ईश्वर के राज्य को सभी लोगों तक पहुंचा सकें। ग्लोब, यह ग्लोब ईश्वर की सृष्टि एवं हमारी पृथ्वी का प्रतीक है और जिसके लिए संपूर्ण यीशु समाज अपने चौथे यूनिवर्सल अपोस्टलिक प्रेफरेंसेस और मध्य प्रदेश प्रोविंस के चौथे प्रोविंस अपोस्टलिक प्रेफरेंसेस के द्वारा इसकी सुरक्षा और संवर्धन के लिए समर्पित है। इस ग्लोब के रूप में हम पूरे विश्व के यीशु समाजियों को, विशेषकर हमारे सुपीरियर जनरल फादर अर्तुरो मार्सेलिनो सोसा, उनके सहयोगियों और सभी प्रोविंशियलों को तेरे चरणों में अर्पित करते हैं। उन पर तेरी आशीष एवं कृपा बनी रहे, जिससे वे समय की चुनौतियों को पहचान कर सबों की मुक्ति के लिए ख्रीस्त की शिक्षा पूरे विश्व में फैला सकें। हम इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। मिट्टी और पौधा। एक पौधा हवा, पानी, उपजाऊ मिट्टी एवं सुरक्षा पाकर एक स्वस्थ वृक्ष के रूप में बढ़ता है। हमारे ख्रीस्तीय जीवन में कलीसिया उपजाऊ मिट्टी एवं छायेदार वृक्ष का स्थान लेती है, जहां हम ख्रीस्त जन्मते, पलते बढ़ते और जीते हैं। ईश्वर की इस कलीसिया को बनाए रखने के लिए
पुरोहितों एवं धर्म बहनों की सख्त जरूरत है। हे प्रभु, आज हम सभी इग्नासियुस और इग्नेसिया नामधारी भाई एवं बहनों के लिए प्रार्थना करते हुए इस पौधे और मिट्टी के रूप में तुझसे नवयुवक एवं नवयुवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे ईश्वरीय बुलाहट को स्वीकार कर पाएं, अपना अध्ययन अच्छी तरह से करते हुए अपने जीवन को विश्वासपूर्ण, सार्थक और सफल बना पाए तथा यदि तेरी इच्छा हो तो एक पुरोहित या धर्म बहन के रूप में अपना सारा जीवन पूरी कलीसिया एवं समाज को समर्पित कर सके। हम इसके लिए ईश्वर से निवेदन करें। तोप का गोला। सन 1521 में पंपलोना की युद्ध में जब तोप के गोले ने संत इग्नासियुस के पैर को तोड़ दिया और उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया, तोप के गोले की घटना ने संत इग्नासियुस को युद्ध के मैदान से उसे बिस्तर पर लेटा दिया और उसे सपनों की दुनिया से वास्तविकता की दुनिया में ले आया। वहीं एक ऐसा समय था जब संत इग्नासियुस ने प्रभु यीशु के प्यार को बहुत ही करीब से अनुभव किया। वहीं संत इग्नासियुस जो कभी संसार के राजा एवं राजकुमारियों की सेवा में अपना जीवन समर्पित करना चाहता था, वह अब प्रभु यीशु एवं उसके राज्य के विस्तार के लिए अपने को पूर्ण रूप से समर्पित करना चाहता है। आज हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जिनका हृदय कठोर है। हे प्रभु, आप अपने दिव्य शक्ति से उन्हें आलोकित कर ताकि वे आपकी दया एवं प्रेम को अनुभव कर सकें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। यीशु समाज का संविधान एवं संत इग्नासियुस की आत्मकथा। यीशु समाज का संविधान यीशु समाज एवं प्रत्येक यीशु समाजी के जीवन का आधार है। इसमें संत इग्नासियुस ने यीशु समाजियों को यीशु क्रिस्त के शिष्यों के भांति चलने और यीशु क्रिस्त के मूल्यों को अपने जीवन में अपनाने के लिए एक माध्यम प्रस्तुत किया है। यीशु समाज इसी संविधान के द्वारा इतिहास के पन्नों से लेकर आज तक इसके नियमों एवं शर्तों के माध्यम से आगे बढ़ता चला आ रहा है। साथ ही साथ संत इग्नासियुस की आत्मकथा प्रत्येक यीशु समाजी को संत इग्नासियुस के पद चिन्हों पर चलना सिखाती है, जो ईश्वर का सच्चा सिपाही एवं सेवक है। आज हम इस शुभ अवसर पर फादर तेज कुमार मिंज के लिए प्रार्थना करें कि वे जो आज अपना जीवन ईश्वर को संपूर्ण तरीके से समर्पित कर रहे हैं, वे संत इग्नासियुस के पद चिन्हों पर चल सकें एवं यीशु समाज के संविधान को जीवन भर अपने कर्तव्यों में लागू कर सकें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। भारतीय संविधान। हे प्रभु परमेश्वर, समस्त ज्ञान के स्रोत, हम अपने देश भारत के संविधान को तुझे समर्पित करते हैं। इसे 15 महिलाओं सहित 299 विद्वानों ने 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिनों के कठिन परिश्रम से तैयार किया है। यही हमारी नागरिकता, गरिमा, अधिकार, कर्तव्य और सुरक्षा की पूंजी है।
हे प्रभु, आज कुछ लोग इस संविधान की अवहेलना कर इसमें निहित प्रावधानों का दुरुपयोग कर अल्पसंख्यकों, दरिद्रों, आदिवासियों और दबे कुचले लोगों को राजनैतिक प्रताड़ना दे रहे हैं। हे प्रभु, नेताओं, शासकों और संपन्न लोगों सहित हम सबको कृपा दे कि हम संवैधानिक प्रावधानों का सदुपयोग कर हम इस संविधान की रक्षा कर सबकी खुशहाली के लिए कार्य कर शांति, समृद्धि और समरसता में जीवन बिता सकें। इसके लिए हम ईश्वर से निवेदन करें। रोटी और दाखरस। रोटी और दाखरस क्रिस्तीय जीवन का मूल आधार है। इसके द्वारा ही हमारा आत्मिक पोषण होता है। आज हम इस रोटी और दाखरस को चढ़ाते हुए प्रार्थना करें कि हम यीशु ख्रिस्त के मूल्यों को अपने जीवन में स्थापित कर खुद को यीशु ख्रिस्त के शिष्य के रूप में लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर सकें और इसी विश्वास के द्वारा हम लोगों में ईश्वर के प्रेम को बांट सकें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे प्रभु नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे अपने समस्त लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, संत इग्नासियस के मरणोत्सव में जो दान हम अर्पित कर रहे हैं वे तुझे पसंद आए। सारी पवित्रता का स्रोत या पवित्र संस्कार हमें यथार्थ रूप से पवित्र कर दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है
कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने संत इग्नासियुस को अपने पुत्र की संगति में बुलाया, जिससे यीशु के प्रति उनका प्यार अनेकों के हृदयों को तेरी महत्तर महिमा खोजने के लिए प्रेरित करे। तूने सारी दुनिया में तेरी सेवा के महत्तर समर्पण के प्रचार के लिए एवं तेरी कलीसिया को तेरे प्यार की अग्नि से प्रज्वलित प्रेरितों का धर्म संग देने के लिए उन्हें चुना। ख्रीस्त के साथ स्वर्गीय गायक मंडली तेरी प्रशंसा एवं महिमा का गान करती है। स्वर्गीय सामर्थ्य सेराफीम और दूतों के आनंदमय गान में सम्मिलित होता है। हमारा भी स्वर उनके साथ एक हो जाए, जैसे वे तेरी आराधना में तेरे सामने झुकते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्बल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपापूर्वक पवित्र कर दे, कि यह तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यह ख्रिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने
अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब उसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य, हे प्रभु हम तेरी मृत्यु पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरुत्थान करते इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्ति भोग प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बात जोहते हैं। धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर दया कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपने बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रीस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुंवारी मरियम, उसके वर धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों, संत इग्नासियुस और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गीय आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन की यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष विक्टर हेनरी, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा करो। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपापूर्वक स्वीकार कर, दया से प्रवृत्त होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को जहाँ कहीं भी हों अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने में और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिखा चुके हैं, हम लोग भी वहीं पहुँचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, जिनसे संसार के सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें।
जैसे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें सिखाया है। तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया की विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर शांति का अभिवादन कीजिए।
देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं सच्ची हूँ, या मेरे नाम और मेरी आत्मा जीवित हो जाएगी। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मैं फादर तेज कुमार मिंज यीशु समाजी व्रत दीक्षा लेता हूँ। मैं ईश्वर की माता संत कुमारी मरियम, सब दूतों तथा संतों और यहाँ पर उपस्थित सब लोगों के सम्मुख सर्वशक्तिमान ईश्वर से और ईश्वर के प्रतिनिधि आपसे मान्यवर फादर रंजीत टिग्गा यीशु समाजी, जो यीशु संघ के परमाधिकारी और उनके उत्तराधिकारियों का स्थान लेते हैं, यीशु संघ के नाम संत पापा के पत्रों तथा संघ के संविधान में वर्णित जीवनचर्या के अनुसार जीवन भर के लिए निर्धनता, शुद्धता और आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करता हूँ और इस आज्ञा पालन के अनुसार बालकों की शिक्षा का विशेष ध्यान रखने की प्रतिज्ञा करता हूँ। इसके अतिरिक्त मैं यीशु संघ के नाम संत पापा के पत्रों तथा संघ के संविधान के अनुसार संत पापा द्वारा सौंपे हुए कार्यों के विषय में विशिष्ट आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करता हूँ। फादर तेज कुमार मिंज यीशु समाजी, स्थान कैंपियन चर्च रायपुर, तिथि 31 जुलाई 2021। संत इग्नासियस के आदर में यह ख्रीस्त याग धन्यवाद स्वरूप तुझे चढ़ाया है। इसके प्रभाव से हम अनंत काल तक तेरा गुणगान करते रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के
के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें, मिस्सा संपन्न हुआ। Now only the consolation.